students, today we are going to see one more natural resources. So before starting, let me remind you that what is the definition of natural resources. Whatever we are using directly from the nature is known as natural resources. For example, this air, soil, plant, coal, plant, solar energy, these all things are natural resources. Already we have seen many natural resources. Today we are going to discuss about water. So let's start. Water resources are natural resources of water that are potentially useful. Means these water resources are very useful, and in everyday's work we are using too much of it. So let's see. All living things require water to grow and reproduce. सभी living things को जो water की requirement होती है, either it is a small living being or big living being. Like this animal are also need water. This human beings also need water. Any kind of animal need water for drinking purpose. 97% of the water on the earth is salt water. If you look at your earth, you find out that most of the percentage of water is present in the oceans and sea. So 97% of water is present in the oceans. Only 3% is fresh water. Means 97% is present in oceans and only 3% is present in fresh water, and only this fresh water is useful for drinking. So you think only this 3% water is useful for drinking. We cannot use this 97%. We cannot use the salty water of sea because it is salty, so we cannot use that salty water. But seas are the main source of rain. If you think about it, if there will not be sea, so how evaporation of water takes place, and how this cloud will form, and how we will get too much rain in the countries. So these major sources of ocean, sea are responsible for the rain. They cause the rain because from here water is evaporating and forming the cloud, and these clouds are moving towards the land area, and then there it gives the rain. In this way these oceans are also very helpful, and hence rain renews our supplies of fresh water. And when rain comes, and what these rains are doing, these rains are recharging the sources present on the land areas, like pond. The pond water is decreasing, but when rainwater comes, the level of the pond water increases. जितना ज़्यादा रेन होगी उतना ज़्यादा pond में water increase होगा. Why? Because downside in the ground the water suppose finished. So from where the pond will get the water? Of course from the rain. So these rains are also beneficial to recharge the supply of water. And remember, only fresh water is used for drinking, not that salty water. Fresh water we are getting from lake, pond, rivers. Water is stored underground called groundwater. तो हमें लेक से, पॉन्ड से, रिवर से और वाटर जो स्टोर्ड है अंडरग्राउंड में, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, यहाँ सबसे हमें क्या मिलता है? फ्रेश वाटर मिलता है. दिस ग्राउंड वाटर. So remember what is groundwater? Water stored underground. अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोर किया जाता है उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक, पॉन्ड, रिवर एंड ग्राउंड वाटर. Lake, you see this is a lake. Lake means many ponds are combined together, then it will form the lake. जो ponds होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और जो lakes होती है बहुत सारे ponds को combine करके बनाई जाती है. Pond, this pond is only having this much area. When 7-8 ponds will combine, then it will form lake. तो lake जो है pond से बड़ी होती हैं और pond जो है छोटे होते हैं. Rivers are flowing water, and they have a fixed path, or sometimes when there is no fixed path, so what happen? It creates its own path and it is continuously flowing in one direction. ये जो है रिवर होती है जिसमें continuously flow होता है. But in pond and lake there is no flow of water.
पॉन्ड और लेक में से कहीं वाटर फ्लो होके एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, बट दिस रिवर्स आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया and passing through the one state to another state, one district to another district, one country to another country also. Many rivers are like this, which passes through many countries. Like this Brahmaputra river of our country is also flowing through China and then again coming back to the India. So this is river which is flowing, pond and lakes are not flowing. Groundwater, one major source of fresh water is also groundwater. Look at this, this is your ground, means your surface or land you can say. Below this soil is present, we have already seen this soil, and below that soil water is present. This water below the soil is known as groundwater, and we use this groundwater from bore wells. In your home maybe bores are present, so through this bore or through this bore well fresh water is coming, and if this groundwater is not recharged you cannot get the water from this portion because there is no water in the ground level. So how can you get water from here? Okay, next, this is also a kind of lake shown in picture. You see how much big it is. It is not a pond, it is lake. See, look at this picture. This is also a resource of fresh water, like stream it is known as, spring it is known as. So these are also waterfall, these are resources of fresh water. This 3% is, most of this is ice caps and glacier, means we have seen that 97% present in ocean, but 3% is present in 3% is fresh water, and out of this 3%, most of 3% ice caps and glacier, 3% इसका जो ice caps और glacier में present है, and ground water जो है 30% है, while all lakes, rivers and swamps combine only account a small fraction 0.3%. अगर हम lakes, rivers, swamps ये सबको combine करें तो 0.3% की present है. So we will understand it through the graph. Here look at this picture. Where is the earth's water? Suppose this is the earth's total water, 100% water. So ocean is covering 96.5% and fresh water is 2.5% and other saline water is 0.9%. So in this way total water present on the earth is divided into 3 parts. Now this fresh water 2.5% is only of our use for drinking purpose, is only for our use for drinking purpose. We can drink only this fresh water, we cannot use this two kinds of water. Now suppose this 2.5% we are taking and seeing that out of this 2.5%, 68% is glacier and 30% groundwater and only 1.2% is fresh water. Now no need to see this one because up to here only you have to understand. Now look at this is glacier. बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उसी को ग्लेशियर बोला जाता है, और वो कंटिन्यूसली जो है बर्फ के पहाड़ बने रहते हैं. अगर बर्फ के पहाड़ खत्म हो गए तो एक मेजर रिसोर्स ऑफ वाटर खत्म हो जाएगा. इसीलिए बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट करती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स को. See, this is also a kind of glacier. I hope you have seen this in movies. Means a solid ice floating on the oceans. ये जो है अपने आप ही बने रहते हैं और इसमें से धीरे धीरे वाटर जो है जब समर आती है धीरे धीरे दिस आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर. और सपोज कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, जब ये पूरा पहाड़ पानी में कन्वर्ट होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी बचा रहेगा. This is also a kind of lake. You see how much big it is. And the farmers living nearby this lake are using the water from this lake for growing their crops and for various uses, because it gives you the pure water from the ground.
और ये कभी सूखते नहीं है क्योंकि इसमें नीचे ग्राउंड से वाटर आते रहता है और ये रिचार्ज होते रहता है, और इसीलिए जो फ्रेश वाटर माना जाता है। तो ड्रिंकिंग के लिए हमें फ्रेश वाटर ही चाहिए होता है। दिस इज ऑल्सो stream, or you can say waterfall. This is also major source of water. See, water is very important in our daily life for various purpose, either for drinking or for washing or for cooking, for many purpose. Now here look at this estimate of the share of people in developing countries with excess of drinking water. कितना ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर का, हम जितना ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा भी यूज़ करते जा रहे हैं। सो लुक यार 1970 में परसेंट ऑफ वाटर का जो यूज़ था 25-30% था। 1980 में ये बढ़ करके 40% हो गया, 1990 में बढ़ के 60% एंड 2000 में बढ़ के 80%। तो इस तरह से जो वाटर का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो हमें वाटर को सेव करना चाहिए और वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो सोर्सेस है हमारी वो सेव रह सके, सोर्सेस ख़त्म ना होने पाए। फ्रेश वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। फ्रेश वाटर ये एक ऐसी रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है। वी कैन रिन्यू दिस। नाउ सी हाउ कैन वी रिन्यू दिस। सपोज दिस pump, from pump we are taking out water for various purpose, for crop, for drinking, washing, for all purpose we are taking water from here, पंप से या फिर बोर से या फिर टैप से। तो इसके नीचे जो लाइंस दिख रही है इसमें क्या है, वाटर की रिसोर्सेस है ये पूरी। तो ये वाटर इसमें से जो है यहाँ से पंप हो करके बाहर निकलता है। ये पंप को वाटर कैसे मिल रहा है, यहाँ सोर्सेस जो है इसको रिचार्ज कर रही हैं। कैसे रिचार्ज कर रही हैं, या तो स्ट्रीम से वाटर अंदर आता है और अंदर आता है तो फिर ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, और रिचार्ज हो जाता है तो फिर हम यहाँ से पंप से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिचार्ज होने में ये प्लांट्स भी हेल्पफुल करते हैं क्योंकि ये वाटर को खींचते हैं अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींचेंगे तो ज़्यादा वाटर आएगा, और इन दिस वे दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन रिचार्जिंग। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा प्लांट लगाओ, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी हमारे एनवायरनमेंट में। तो look here, it is written recharge area and it is written discharge area. You have seen many waterfalls और streams जहाँ पे कोई सोर्स नहीं है फिर भी वाटर ज़मीन में से आ रहा है, और ये ज़्यादातर पहाड़ियों पर ही होता है। पहाड़ों पर से ही कोई भी झरना गिरता है। तो पहाड़ में अचानक से वाटर कहाँ से आ गया, वहाँ पे तो किसी ने नलका नहीं लगाया। सो व्हाट हैपेंड, द वाटर फ्रॉम दिस पोर्शन इज गोइंग अपसाइड। धीरे धीरे वाटर जो है अपसाइड चढ़ते हैं, और फिर यहाँ पे जहाँ पे वीक होता है वहाँ से वाटर सोर्सेस आना शुरू हो जाती है, और फिर ये वापस नीचे की तरफ ज़मीन के ऊपर से फॉल करती हैं। ये ज़मीन के अंदर से ऊपर जा रही है और ज़मीन के ऊपर से बाहर आ रही है। तो इन दिस वे इट इज़। और ये जो स्ट्रीम का पानी होता है इसे बहुत ही प्योर माना जाता है, क्योंकि ये जो वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है ये पूरा छनता हुआ जाता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रह जाती। इसीलिए जो स्ट्रीम का वाटर होता है बहुत ही प्योर होता है, और इसीलिए ये पीने लायक होता है। नाउ सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, कौन कौन सी सोर्सेस होती हैं फ्रेश वाटर की। सरफेस वाटर, अंडर रिवर फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो एंड फ्रोजन वाटर। ये सारी जो है फ्रेश वाटर होते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। इसमें कोई सॉल्ट नहीं मिला है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली है, और ये नेचर में पूरी तरह से सेफ है डायरेक्ट यूज़ के लिए। इसमें आपको अगर ये वाले वाटर मिलते हैं तो आपको इसमें मशीन लगा के कुछ भी प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि ऑलरेडी प्योरीफाई है बाय द नेचर। सरफेस वाटर लुक हियर, सरफेस वाटर किसे कहेंगे, जो अर्थ की सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा, अप साइड पे ही प्रेजेंट रहेगा, दैट इज ओनली सरफेस वाटर। हाउ द वाटर टेबल लुक्स अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ए लैंड, सरफेस पे जो वाटर दिख रहा है वही जो है सरफेस वाटर है। लाइक दिस रिवर्स, दिस विल फॉर्म रिवर्स। तो ये जो वाटर है ये जो है आपके फ्रेश वाटर है और सरफेस वाटर है। अंडर रिवर, कुछ रिवर्स जो है अंडरग्राउंड होके भी चलती हैं, वो हमें ज़मीन के ऊपर नहीं दिखाई देती, लेकिन वो ज़मीन के नीचे फ्लो होती रहती हैं।
तो ऐसी रिवर्स को क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड रिवर बोलते हैं। तो ये भी क्या है, फ्रेश वाटर की रिसोर्स है। जहाँ पे वीक पड़ जाती है लैंड, वहाँ पर ये रिसोर्सेज बाहर आ जाते हैं एंड दिस फॉर्म्स रिवर और दे डेवलप्स रिवर, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं एंड दिस रिवर विल ऑल्सो फ्लो, so this is under river flow. So this is also a major resource of fresh water. Groundwater. So groundwater, you see, this is surface, this is ice, glacier, and this is stream, spring, यहाँ से water आ रहा है, ये this is pond और lake, एंड दिस इज ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है वाटर, दैट इज ग्राउंड वाटर। ये हो सकता है इसके बीच में कुछ बड़े पार्टिकल्स हों, लाइक रॉक्स आर प्रेजेंट, और ये रॉक्स के बीच में जो है, जो गैप है, उसमें वाटर भरा हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा कि वाटर जो हर कहीं पे वाटर प्रेजेंट नहीं रहता, क्योंकि उसके नीचे जो है ग्राउंड वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कई जगह सूखा पड़ जाता है। तो ग्राउंड वाटर जहाँ पे है और रिचार्ज होते रहता है, वहाँ पे वाटर बचा रहता है। और जहाँ पे रिचार्ज भी नहीं होता वाटर, आप सोचो ये इतना सा वाटर है, जब आपने पंप से सारा वाटर निकाल लिया तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं बचेगा, तो आपके पंप से पानी आना बंद हो जाएगा। सो अगर आप यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर, तो आपको रिचार्ज भी करना चाहिए ग्राउंड वाटर को। और नाउ डेज मैनी सिस्टम्स आर कमिंग, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो रेन वाटर को कलेक्ट करके आप इस ग्राउंड वाटर से अटैच कर दे, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होते रहेगा। जिससे क्या होगा, समर्स में जब बोर्ड सूखने लगते हैं तो उस टाइम पे बोर्ड नहीं सूखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिचार्ज रहेगा। नाउ दिस इज अगेन आइस glacier, big glacier it is also having too much water in it. Water uses, now we will see what are the uses of water. Already we know many uses of water. We are using the water for drinking, for crops, for bathing, agriculture, we are using water in agriculture में अगर हमें कोई फर्टिलाइजर्स भी ऐड करना है तो हम उसे वाटर में मिक्स करके ऐड करते हैं, सो दैट इट कैन स्प्रेड वेल। अगर हम सॉलिड यूज़ करेंगे तो सॉलिड को हम जल्दी से ज़्यादा दूर तक नहीं फैला सकते हैं, वो एक ही जगह इकट्ठा रह जाएगा। बट इफ़ वी मिक्स दैट फर्टिलाइजर विथ वाटर एंड देन वी गिव टू द प्लांट्स, सो इट विल स्प्रेड अप एंड ऑल द प्लांट्स विल एब्जॉर्ब द फर्टिलाइजर वेरी वेल। और प्लांट जो है डेली ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्लांट जो है नीचे सॉइल से खींच करके ऊपर ले जाना है तो किसी चीज़ में मिक्स करके ही ले जाते हैं। तो वाटर ही वो चीज़ है जो नीचे से फर्टिलाइज़र को मिक्स करके पूरे उसमें फ्लो होने का काम करती है। लाइक इन आवर बॉडी ब्लड इज़ प्रेजेंट, तो ब्लड जो है फ्लो करता है पूरे बॉडी में, देन ओनली आवर बॉडी इज़ हेल्थी। एंड similarly in this, water is flowing and mixing all the things in it and sending the food from one place to another, from one man to another. तो water बहुत बहुत necessary है agricultures के लिए। Industries, many industries are using water, cloth industries, paper industries, cotton industries, बहुत सारे industries हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग वाटर, और ऐसा भी नहीं कि वो कम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करती, नो, दे यूज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, लाइक फॉर कूलिंग एंड हीटिंग। अगर इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ हीट हुई है एंड दे हैव टू कूल, सो ओनली वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी टू कूल डाउन एनीथिंग विदाउट यूज्ड इन इट। आप कोई भी चीज़ को ठंडा करना हो तो आप क्या करते हैं, उसको गर्म चीज़ को जो है एक बर्तन में पानी रखते हैं और फिर गर्म चीज़ को उसमें रख देते हैं, तो क्या होता है, पूरा जो हीट है वो वाटर में चला जाता है और आपकी चीज़ ठंडी हो जाती है। सो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो यूजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पस एंड फॉर हीटिंग पर्पस and also using for washing purpose. So they also produce too much of wastewater also, and what these industries are doing, these industries are releasing their wastewater into the good water only, like from river they are taking water, fresh water, and again releasing fresh water into the river without treatment. This should not happen. आपको water को treat करके river में flow कराना है,
और पहली बात तो ये रिवर में आपको फ्लो ही नहीं कराना है, आपको उसको अलग जगह में फ्लो कराना है. सो इन दिस वे वाटर इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी मीन्स और इसीलिए हमारी वाटर रिसोर्सेज जो हैं ख़राब होते जा रही हैं. सो लेट अस सी नेक्स्ट, डोमेस्टिक यूज़ और हाउस होल्ड यूज़. डोमेस्टिक मीन्स घर में हम उसको क्या क्या कैसे यूज़ करते हैं वाटर को. सो फॉर गार्डनिंग, फॉर वॉशिंग हैंड, फॉर स्विमिंग, फॉर लॉन्ड्री, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर क्लीनिंग डिशेस, फॉर बाथिंग, ये सारे जगह में हम वाटर यूज़ करते हैं. सो समटाइम्स wastage of water is also seen, so you should not waste water because only 3% water is available for you to drinking and you are wasting that water in various purpose. How can you save water? Like आप कुछ भी चीज़ वॉश करते हैं, लाइक आपने वेजिटेबल्स वॉश किए तो पानी गंदा कहाँ हुआ. यू कैन यूज़ दैट वॉश्ड वेजिटेबल्स वाटर इनटू द गार्डन एरिया. दैट इज़ नॉट मीन्स यू कैन नॉट यूज़ इन गार्डन, ऐसा नहीं है, आप उसे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट देयर इज़ नो केमिकल इन दैट वाटर. सी फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो वी नीड फ्रेश वाटर. अगर आपको फ्रेश वाटर चाहिए तो फ्रेश वाटर आपको बचाना भी चाहिए. फॉर कुकिंग पर्पस ऑल्सो वी आर यूजिंग फ्रेश वाटर. फॉर वॉशिंग ऑल्सो वी यूज़ वाटर and hence we have to save water because without water there is no life on the earth, and if there will not be fresh water so there will not be any water for drinking. Save water, save future, and with this only I end up this video and see you in the next class. If you like the video then click on the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.